program, Dr. R. Singh Gaur Vishwavidyalaya, a Central University, Sagar, Madhya Pradesh. Today, resource person Dr. Jat Singh sir, how to prepare utilization and income expenditure certificate, the topic. So now I request to Shukla sir, formally welcome to the resource person. Thank you, sir. धन्यवाद करुणा सर। सभी को नमस्कार। क्या आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ओके। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के तत्वाधान में चल रहे 18वें फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम के इस तृतीय सत्र के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर जीत सिंह हम सभी से ऑनलाइन जोड़ चुके हैं। मैं डॉक्टर नवनीत शुक्ला अपने सभी प्रतिभागियों की ओर से आपका बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर जीत सिंह का एक प्रोफाइल कैरियर मेरे हाथ में है, जो इसके संक्षेप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। डॉक्टर जीत सिंह ए कॉमर्स एंड मैनेजमेंट फैकल्टी इज ए पोस्ट ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। Presently, he is working as head and assistant professor in the Department of Commerce in Government Postgraduate College, Sambhal, UP. He has 24 years of teaching and industrial experience. His area of interest include financial accounts, financial management, income tax, and business law. 4 scholars have completed their PhD under his supervision, and 4 students are pursuing their research under his guidance. He evaluated number of theses of doctoral degree and was also involved in reviewing of research paper. He has published more than 70 research papers and presented papers in more than 80 national and international seminars and conferences, including various IIMs, and IITs. He has taken many great and extension lecture all over India. He is he is the member of the editorial board more than 10 journals and of repute. He, he has co-authored 2 books of economics and at the graduate level. He has also added 3 books. He is the member of an Indian Commerce Association, Indian Economic Association, Indian Accounting Association, and many other associations. He has credit of organization various seminars, conferences, and workshops during his professional career. बहुत ही इम्प्रेसिव कैरियर सर का रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि मैं भी उसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूं जहां पर सर का कार्य क्षेत्र है, और हार्डली 50 या 60 किलोमीटर की दूरी पर हम लोगों का है। सर नमस्कार। अब मैं आप सबका ज़्यादा समय ना लेते हुए डॉक्टर साहब की तरफ मैं आपको ले सकता हूं। ओवर टू डॉक्टर जीत सिंह। Thank you, शुक्ला sir. जी, Thank you, for sir. your kind words. मैं डॉक्टर जीत सिंह, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक आवर डायरेक्टर सर who have given me an opportunity to interact with all of you. I hope my voice is clear to all of you. Yes, sir. So you just tell me कि what type of medium you want, English, Hindi or both mix. Sir, by language only. Okay, thank you. So first of all I would like to present my screen. Yes, This is sir. visible? Yes, sir. Yes, sir. अगर कहीं कनेक्शन कट जाए तो आप बता दीजिएगा, जी जी। और यू कैन नोट माय फ़ोन नंबर, क्योंकि मुझे पता नहीं चल पाएगा कि कनेक्शन कभी कभी कट जाता है। Yes, sir. मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा 798 Okay, sir. 3366 759 3366. 759। Okay, sir. Thank you. So how many participants are there total? Sir, now at present 18, but total 30, sir. They will be joining within, no problem. Yes. So today we are starting with the session, how we can prepare a utilization and income and expenditure certificate for research grants.
जैसे आप जानते हैं कि एज अ फैकल्टी मेंबर्स वी अप्लाई फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स, and when we receive the project, when we complete the projects, in between we have to submit our expenditure, income and expenditure, कि what type of expenditures we have incurred, कितना हमने खर्चा कर लिया है, and that we have to certify and we have to send it to the granting agencies. तो हमें एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है कि हमने कितना कितना खर्चा कर लिया है, वो हम अपनी ग्रांटिंग एजेंसी को भेजते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ग्रांट्स जो हमारी होती हैं दो तरीके की मानी जाती हैं। वन इज़ वन लाइन फंडिंग और दे में हैव रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि हर एक सब में टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो भी हमें प्रोजेक्ट मिलता है। तो वन लाइन ग्रांट्स होती हैं, वी हैव टू स्पेंड आर द टोटल अमाउंट ऑन द एग्रीड एरियाज, दैट इज़ टर्म्स एंड कंडीशंस आर देयर कि वेयर यू हैव टू स्पेंड द अमाउंट, यू हैव टू स्पेंड द अमाउंट। अगर प्रोजेक्ट में मिलता है तो हमें कुछ रिसर्च एसोसिएट्स, रिसर्च असिस्टेंट्स भी रखने पड़ते हैं, बिकॉज ओनली वन पर्सन कैन नॉट कंप्लीट द होल प्रोजेक्ट, तो ही नीड सम असिस्टेंट्स, ही नीड सम एसोसिएट्स, तो उनकी सैलरीज देनी है। वी हैव टू परचेज इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स में आप कह सकते हैं अगर साइंस के आप फैकल्टी मेंबर्स हैं तो यू हैव टू परचेज सर्टेन इक्विपमेंट्स, लैब इक्विपमेंट्स, या केमिस्ट्री में आप हैं तो यू हैव टू परचेज सम केमिकल्स। फिर ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती है बिकॉज यू हैव टू डू अ सम काइंड ऑफ सर्वे ऑल्सो। फिर मटेरियल्स वगैरह, स्टेशनरी वगैरह हमें खरीदनी पड़ती है। सो वी हैव टू स्पेंड इन ऑन वेरियस हेड्स। तो वो हमारा एक एग्रीड एरियाज़ हैं कि वेयर वी विल गोइंग टू स्पेंड दी अमाउंट। कुछ इस तरह की होती हैं कि हमें पैसा मिल गया बट इट इज़ अप टू अस कि हाउ वी विल गोइंग टू स्पेंड, बट condition is we have to complete the project. So there will be other grants that specify how the funds are to be divided between the various categories. तो हम अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं, लेकिन कहीं पर कैप्स लगे होते हैं कि ऑन सैलरीज यू हैव टू स्पेंड ओनली 30%, ऑन इक्विपमेंट्स यू हैव टू स्पेंड ओनली 20%, लाइक दैट। तो दो तरह की ग्रांट्स कंडीशंस हो सकती हैं कि हम अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं अपने हेड्स में, और कहीं कहीं लिमिट लगी होती है कि इससे ज़्यादा आप खर्च नहीं करेंगे ऑन अ वन पर्टिकुलर हेड। जिसको ग्रांट मिलती है वी कॉल इट अ चीफ इन्वेस्टिगेटर हु हैज़ द ओनरशिप ऑफ द रिसर्च ग्रांट्स अवार्डेड टू देम, एंड ऑल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द अवार्ड ग्रांट सब उसकी जिम्मेदारी है। ही इज़ द ओनली वन पर्सन रिस्पॉन्सिबल, मीन्स द चीफ इन्वेस्टिगेटर। उसमें उसको क्या करना है, ही हैज़ टू इंक्लूड्स रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स टू एंश्योर एक्सपेंडिचर अल्टीमेटली रिमेन्स विद इन द लिमिट्स, कि जो हमारा पैसा मिल रहा है वो हम एक्स्ट्रा खर्च ना कर दें। क्योंकि बहुत सी जगह होता है ना कि हम खर्चा करते हैं तो ओवर हो जाता है। अगर आपका खर्चा ओवर हो रहा है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, आपको अपनी पॉकेट से ही वो देना पड़ेगा। अगर आपको 1 लाख रुपीज़ मिले हैं ग्रांट के तो यू हैव टू स्पेंड ओनली 1 लाख रुपीज़। ज़्यादा खर्च होता है तो आपको अपनी पॉकेट से ही बियर करना पड़ता है। देर आर लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस विच इशूज़ रिसर्च ग्रांट्स। कुछ यहाँ पर मैंने लिख रखी हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है, ICSSR है। ICSSR सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स निकालती हैं, आप रेगुलर देख सकते हैं। इन अ ईयर दे कैन गिव एन एडवर्टीजमेंट एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स, 2 टाइम्स तो कर ही देते हैं। तो वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स, माइनर प्रोजेक्ट्स हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, तो इनके रेगुलर आते रहते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस की फैकल्टी मेंबर्स इसको देख सकते हैं। देन इम्प्रेस है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है, UGC है, CSIR है, DRDO है, अंडर नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स है। मीन्स इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन कोई इनका टाइम लिमिट नहीं है, कोई टाइम नहीं है। इनको जिसको भी अगर इंटरेस्टेड है फैकल्टी मेंबर्स को, तो दे हैव टू रेगुलर मॉनिटर देयर वेबसाइट्स, और जब उनका एडवर्टीजमेंट आते हैं, जब उनका वो अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो देन एनीबडी, एनी फैकल्टी मेंबर कैन अप्लाई फॉर दीज रिसर्च ग्रांट्स, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ICSR का ही मुझे दिखाई देता है ज़्यादातर, कि ICSR ही सबसे ज़्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट्स करता है। कुछ माइनर प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ 5 लाख रुपीज़ के अंदर अंदर आपको करने हैं तो दे आर कॉल्ड माइनर प्रोजेक्ट्स। कुछ 5 लाख से ज़्यादा के अमाउंट के हो सकते हैं तो वो वी कॉल इट अ मेजर प्रोजेक्ट्स। टाइमिंग्स का भी हो सकता है, माइनर प्रोजेक्ट जनरली फॉर 1 ईयर, मेजर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं डिपेंड अपॉन दी फैकल्टी मेंबर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, जैसे भी उनका प्रोजेक्ट है, जो उनकी थीम है उसके हिसाब से। तो आप जो भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं आगे चल के, तो वो आप इन वेबसाइट्स को, इनके अलावा और भी वेबसाइट्स हैं, आप सर्च रेगुलर मॉनिटर कर सकते हैं। नाउ कमिंग आउट टू आवर मेन टॉपिक, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट।
तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, और फिर कुछ हम फॉर्मेट देखेंगे। आईसीएसएसआर के फॉर्मेट हैं, कुछ और फॉर्मेट्स हैं कि किस तरह से वी कैन प्रिपेयर दिस यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पर आप देखेंगे बेसिक्स अगर हम देखते हैं तो व्हाट क्या है ये, इट इज जस्ट अ सर्टिफिकेट, यू हैव टू सर्टिफाई। सबमिशन की बात आती है तो इट डिपेंड्स अपॉन दी ग्रांटिंग एजेंसी कि वो कब सर्टिफिकेट आपसे मांगती है। इट मे बी क्वार्टरली, इट मे बी हाफ ईयरली, और इट मे बी एनुअली। तो एज पर द रिक्वायरमेंट यू हैव टू सबमिट द यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। एंड हाउ यू कैन प्रिपेयर इट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। जब भी पैसा आपका आता है आपको अपने रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे, अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे कि किस तारीख को कब कैसे पैसा आया, हाउ यू विल गोइंग टू स्पेंड दोज अमाउंट, कैसे कैसे खर्च करना है वो भी आपको अपने सबको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या जो अदर रिकॉर्ड्स हैं वो आपके प्रॉपरली मेंटेन्ड होने चाहिए, जिससे कि आप ये सर्टिफिकेट्स या जो और फॉर्मेट्स हैं यू कैन फिल एंड सबमिट इट टू द ग्रांटिंग एजेंसी। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की हम बात करते हैं तो इट इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ गवर्नमेंट अथॉरिटी और अदर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, हु इज रिसीविंग द ग्रांट, टू सर्टिफाई दैट द फंड्स और रिसोर्सेज प्रोवाइडेड टू एन इंडिविजुअल और एंटिटी हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच दे वर ओरिजिनली ग्रांटेड। हमें सर्टिफाई करना है कि जो पैसा हमें मिला है और जिस पर्पस के लिए मिला है उसी पर्पस में हम उसको खर्च कर रहे हैं, ये हमें सर्टिफाई करना है कि मीन्स पैसा हमने इधर उधर नहीं करा है, जिस पर्पस के लिए मिला है उस पर्पस में ही हमने ये खर्च करा है, और जो जो लिमिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमने खर्च करा है। अगर ट्रेवलिंग के लिए हमें 10% सैंक्शनड है तो हमने केवल 10% ही उसको खर्च करा है, इससे ज़्यादा खर्च नहीं करा है। सैलरीज में बांटना है तो अगर 30% है सैलरीज में बांटना है हमें टोटल का 30%, तो हमने केवल 30% ही सैलरीज में डिस्ट्रीब्यूट करा है, उसका पेमेंट करा है। तो मीन्स यू हैव टू सर्टिफाई दैट थिंग। मेन यूज क्या हो गया, इससे क्या होगा, एक अकाउंटेबिलिटी रहती है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है इन द यूज ऑफ पब्लिक और प्राइवेट फंड्स। इट सर्व्स एज अ प्रूफ दैट रेसिपेंट हैज यूज्ड द फंड्स और रिसोर्सेज इन द मैनर दैट वाज इंटेंडेड एंड दैट द मनी हैज नॉट बीन मिसयूज्ड और मिसएप्रोप्रिएटेड। ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि हमने उसको मिसयूज नहीं करा है, मिसएप्रोप्रिएट नहीं करा है, गलत जगह नहीं लगाया है। जो भी पैसा है वो हमने अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ही लगाया है, और प्रोजेक्ट भी हमारा एक इस तरह का है कि जो आगे जाकर बेनिफिशियरीज को काम आ सकता है, कि जो भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो किसी ना किसी के लिए फायदे के लिए ही कर रहे हैं। तो अपने पर्सनल यूज नहीं है, पर्सनल बेनिफिट इतना नहीं है, लेकिन हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शो एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबल पर्सन हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं विच मे बी बेनिफिशियल टू द मासेस। अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ इट मे बी रिक्वायर्ड फॉर लीगल और रेगुलेटरी कंप्लाइंस पर्पसेस। जब ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट हो रहा होता है वहाँ पर भी ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। और व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट रिपोर्ट्स टू द फंडिंग एजेंसी और अदर रेगुलेटरी बॉडी। तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है, और ये इंश्योर करता है कि योर फंड्स आर प्रॉपरली यूटिलाइज्ड, जो भी रिसोर्सेज हैं, फंड्स हैं, वो प्रॉपरली यूटिलाइज्ड हुए हैं। और एक इससे क्या होता है, एक ट्रस्ट बनता है, एक क्रेडिबिलिटी बनी रहती है बिटवीन द फंडिंग एजेंसीज एंड द रेसिपिएंट्स, कि जो फंड्स हमें दे रहे हैं और जो हमें मिल रहा है, तो एक ट्रस्ट और एक कॉन्फिडेंस बना रहता है कि यस, कि दे आर फंड्स आर प्रॉपरली यूटिलाइज्ड, कि सही से पैसा यूज कर रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। तो ये सर्टिफिकेट हमें एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस देता है। तो वो भी फंडिंग एजेंसी भी समझ जाती है यस कि ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन, हमारा पैसा जो हमने दिया है वो सही से यूज हो रहा है। तो अकाउंटेबिलिटी तो हो गया इन द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। दूसरा पॉइंट इसमें क्या आ गया, पर्पस ऑफ स्पेंडिंग द फंड्स, किस पर्पस के लिए यूज करा हो, और ट्रांसपेरेंसी एंड प्रॉपर रिकॉर्ड्स भी मेंटेन हो जाते हैं, क्योंकि जब आपको क्योंकि सर्टिफिकेट देना है तो आपको प्रॉपर अकाउंट्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। तो दीज आर द कार्डिनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंड मैनेजमेंट। ये फंड मैनेजमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिस पर्पस के लिए फंड्स मिले हैं उस पर्पस में ही वो यूज होने चाहिए, और प्रॉपर रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने चाहिए, जिससे कि जब ऑडिट हो, स्क्रूटनी हो, या कोई और वेरिफिकेशन हो, इंस्पेक्शन हो, तो उसमें कोई गड़बड़ी आपकी ना मिले। तो सिंपल पार्लेंस में हम बात करते हैं तो यूटिलिटी सर्टिफिकेट क्या हो गया, इट इज अ स्टेटमेंट और जस्ट अ सर्टिफिकेट और एन अंडरटेकिंग
डिपेंडिंग अपॉन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट्स। यहाँ पे फॉर्मेट्स की हम बात करेंगे आगे कि जो भी रिसर्च एजेंसी है वो अपने फॉर्मेट्स बताती है कि भाई इस फॉर्मेट में ही आपको अपनी जो इंफॉर्मेशन देनी है, जो सर्टिफिकेट देना है, तो देयर इज अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट्स। फॉर्मेट में जो मेंशन होते हैं वो लगभग सब होता है, बस कुछ थोड़ा डिजाइनिंग का फर्क हो जाता है, कुछ वर्डिंग्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन सबके अपने अपने फॉर्मेट्स होते हैं। उस फॉर्मेट्स में ही आपको अपना सर्टिफिकेट सबमिट करना है। So any institution, especially the ones getting funds in aid or grants or financing of a particular project from the government, must submit the requisite utilization certificate. तो जैसे जब भी मांगे, it may be quarterly, it may be half yearly, it may be annually, जो भी conditions आपकी हैं, उसके accordingly you have to submit your utilization certificate. चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सबके अपने अपने फॉर्मेट्स हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना सर्टिफिकेट सबमिट करना है। अगर अब देखिए, आप प्रोजेक्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि इट इज योर प्रोजेक्ट इज फॉर 4 to 5 years या 3 years, 4 years, 5 years, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, रिसर्च एजेंसी आपको इकट्ठा, सपोज इट इज द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 10 लाख रुपीज, तो 10 लाख रुपीज आपको फर्स्ट ईयर में नहीं देगी, इंस्टॉलमेंट्स में देगी। अगर इफ योर प्रोजेक्ट इज फॉर 5 years, तो यू कैन गेट अ इंस्टॉलमेंट ऑफ 2 लाख फॉर 5 years, 2 लाख 2 लाख 2 लाख करके दे सकती है आपको। अब बात ये आती है कि जब आपके इफ यू हैव स्पेंड 2 लाख रुपीज, देन यू वांट अनदर इंस्टॉलमेंट। सो फर्स्ट यू हैव टू सबमिट योर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दैट यू हैव यूटिलाइज्ड दिस 2 लाख रुपीज एंड नाउ यू वांट अनदर 2 लाख रुपीज। तो जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको चाहिए, तो पिछली इंस्टॉलमेंट का आपको सर्टिफिकेट देना होगा। तो नेक्स्ट रिलीज आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट तभी मिलेगी जब आप पुरानी इंस्टॉलमेंट जो आपको मिली है उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यू हैव सबमिटेड। तो वो सही से अगर आपने यूटिलाइज कर लिया है, उसमें सर्टिफाई कर दिया कि हमने कोई गलत यूज नहीं करा है, पूरे 2 लाख रुपीज हम स्पेंड कर चुके हैं और इस पर्पज के लिए हम यूज कर चुके हैं, तब आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज होगी, वरना नहीं हो पाएगी। तो जो सर्टिफिकेट है वो रेगुलरली आपको सबमिट करना होगा। व्हेन यू वांट अ न्यू इंस्टॉलमेंट, तो यू हैव टू submit this utilization certificate. कई बार ऐसा होता है, many times the grants has to be used for specific purpose and during the stipulated period. जाहिर सी बात है, जो प्रोजेक्ट मिल रहा है तो उसका कोई पर्पस होगा और वो फंड्स आपको उसी पर्पस में यूज करने हैं और विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। अगर 1 year का प्रोजेक्ट है तो यू हैव टू स्पेंड इन 1 year, यू हैव टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट इन 1 year। 2 years हैं, 3 years हैं, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट विद इन द टाइम फ्रेम। तो ये जो सर्टिफिकेट आप दे रही हैं, एक एश्योरेंस मिल जाता है ग्रांटिंग या रिसर्च एजेंसी को, सैंक्शनिंग अथॉरिटी को, कि जो ग्रांट्स फंड्स हैं वो आप उसी पर्पज में यूज कर रहे हैं, विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड यूज कर रहे हैं, कोई मिस यूज नहीं है, कोई डिले नहीं है, कोई इम्प्रॉपर यूज हम नहीं कर रहे हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि एश्योरेंस मिल जाता है कि एजेंसी को कि हाँ भाई, हमारा पैसा सही जगह लगाया जा रहा है। कुछ ग्रांट्स हमारी सैंक्शन होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स प्रोवाइडेड बाय द यूटिलाइजेशन एंटिटी। जब हम प्रोजेक्ट अप्लाई करते हैं तो हम मेंशन करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ कितना पैसा चाहिए, एक एस्टिमेट हम बनाकर देते हैं कि हमें सैलरीज में अपने जो एसोसिएट्स हम रखेंगे उनको इतनी सैलरी देनी है, इतने इक्विपमेंट्स हमें खरीदने हैं, इतनी ट्रैवलिंग पर खर्च होना है, इतना स्टेशनरी पे खर्च होना है, और कुछ हम कंटिजेंसी रख लेते हैं कि कहीं थोड़ा बहुत 10-20% एक्स्ट्रा खर्च भी हो सकता है। तो हम एक एस्टिमेट अपना बनाकर देते हैं और उसके हिसाब से अ स्पेसिफिक सम इज अलॉटेड टू अस उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, और उसको हमें उस पर्पस में ही यूटिलाइज करना है। और एक्चुअल एक्सपेंडिचर हम बताएंगे कि कितना हमारा खर्च हो गया है और वी विल गोइंग टू सबमिट द यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स आर नेसेसरी फॉर वेरियस सेक्टर्स। चाहे आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो, जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, रोड बन रही होती हैं, ब्रिजेस बन रहे होते हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो पैसा आता रहता है उसका भी वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रोजेक्ट्स कर रही हैं वो अपना एक सर्टिफिकेट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देती हैं और तभी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट उनको रिलीज होती है। एनजीओज हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी बहुत काम कर रही होती हैं, तो उनको भी जहाँ जहाँ से पैसा मिलता है वो उसके बारे में दे सबमिट देयर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट।
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करती हैं कंपनीज, तो वो भी एक सर्टिफिकेट अपना रखती हैं कि हमारा पैसा CSR फंड्स है, कि वो पैसा हमारा कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रहा है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे हम आप लोग हैं, तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो हमें पैसा मिलता है एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए, प्रोग्राम्स के लिए, तो उसको भी हमें वैलिडेट करना है कि हमें अपना सर्टिफिकेट टाइम पर सबमिट करना है कि हाँ, हमने जो पैसा है वो सही से यूज़ कर लिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये तो हमारा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इंट्रोडक्शन हो गया, बट देर आर सर्टेन फॉर्मेट्स। वैसे तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना फॉर्मेट दे सकता है, लेकिन अगर जहाँ पर कोई फॉर्मेट नहीं दिया गया है, तो एक फॉर्म नंबर 12A है जनरल फाइनेंशियल रूल्स में, हम उसके अकॉर्डिंगली अपना सर्टिफिकेट हम बना सकते हैं। तो एज फॉर्मेट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख रहा है फॉर्मेट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो दिस इज टू बी प्रिपेयर्ड एज पर द फॉर्मेट गिवन इन जनरल फाइनेंशियल रूल्स, फॉर्म नंबर 12A है। और स्टेट गवर्नमेंट्स होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपना बताती हैं फॉर्मेट, और हर स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना अलग अलग फॉर्मेट बना सकती हैं, बता सकती हैं कि भाई मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है वो अपना अलग फॉर्मेट हो सकता है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उसका अलग हो सकता है, दिल्ली गवर्नमेंट का अलग हो सकता है। तो जो भी आपको फॉर्मेट मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू सबमिट योर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट एज वेल एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर सर्टिफिकेट। कुछ नहीं है तो हम जनरल फाइनेंशियल रूल्स के अकॉर्डिंगली हम फॉर्म नंबर 12A है उसमें हम भर सकते हैं, अपना सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स क्या है? अगर हमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बनाना है तो सबसे पहले हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। सर्टेन इंफॉर्मेशन वी नीड। अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेट, फर्स्ट सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ द यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। इससे क्या होगा कि जब सर्टिफिकेट बनाने बैठेंगे तो फिर हम देखेंगे अरे ये चीज़ हमारे पास नहीं है, वो चीज़ हमारे पास नहीं है। तो ऐसा ना हो तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ द यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, एंड दिस विल हेल्प्स इन अवॉइडिंग एरर्स एंड कन्फ्यूजन। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, कोई एरर्स नहीं होंगी। तो फॉर्मेट के बारे में पहले हम उसको सही से पढ़ लें कि हमें किस तरह से ये बनाना है। दूसरा है हमारा ग्रांट सैंक्शन लेटर हमारे पास होना चाहिए। जो पैसा हमें मिल रहा है तो एक लेटर भी साथ में, कवरिंग लेटर भी आता है। तो ग्रांट सैंक्शन लेटर और रिलीज लेटर्स हमारे पास होनी चाहिए सर्टिफिकेट बनाते वक्त, क्योंकि हमें उसमें वी हैव टू मेंशन द डेट ऑफ ग्रांट रिसीव्ड और द लेटर नंबर्स, रेफरेंस नंबर्स हमें लिखने पड़ते हैं। देन वी हैव टू कीप दीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि कब पैसा मिल रहा है तो हमें अकाउंट्स ही बनाने हैं, कब पैसा मिल रहा है और हम कहाँ कहाँ उसको खर्च कर रहे हैं, तो प्रॉपर अकाउंटिंग भी होनी चाहिए। यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, अब सब अकाउंट्स कॉमर्स के तो नहीं होते, साइंस की फैकल्टीज़ हैं, आर्ट साइड की फैकल्टीज़ हैं, तो दे कैन टेक द हेल्प ऑफ देयर अकाउंट्स टीचर्स और कॉमर्स टीचर्स की हेल्प वो ले सकते हैं। तो उसमें कोई परेशानी नहीं है अगर आपके कॉलेज में, क्योंकि अब तो मल्टी डिसिप्लिनरी है, आर्ट साइड भी होती है, साइंस भी होती है, कॉमर्स भी होती है। तो हम दूसरी अपनी फैकल्टी मेंबर से हम थोड़ा बहुत हेल्प उनकी ले सकते हैं कि किस तरह से हमें अकाउंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। तो आपको फॉर्मेट समझना है, सैंक्शन लेटर्स, रिलीज लेटर्स हैं वो भी आपको रखने हैं, और प्रॉपर अकाउंट्स आपको यू हैव टू मेंटेन दैट। अब देखिए जनरल फाइनेंशियल रूल्स जो फॉर्म नंबर 12 है हमारा, उसमें देखिए कुछ सर्टिफिकेशंस हमें करने होते हैं। मीन्स वी हैव टू सर्टिफाई, प्रमाणित करना है कि ये सब कंडीशंस हमने फुलफिल कर ली हैं। तो देर आर क्या पहला पॉइंट है हमारा, वी हैव टू सर्टिफाइड दैट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। ये हमें सर्टिफाई करना है कि प्रॉपर अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एज पर द रिक्वायरमेंट्स। जब सर्टिफिकेट दिया जाता है बाद में, तो इट शुड बी आफ्टर द अकाउंट्स आर ऑडिटेड, कि अकाउंट्स हमने ऑडिट करा लिए हैं बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो हमारे यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, जिनकी हम हेल्प लेते हैं सैलरीज के लिए, या फॉर्म 16 वगैरह आपको मिलता होगा। तो जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं आपके इंस्टीट्यूशन के, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ देम और उनसे अकाउंट्स अपने ऑडिट करा सकते हैं। देन फिगर्स इन यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट टैली विद ऑडिटेड फिगर्स। जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट में हम वैल्यूज लिख रहे हैं वो सेम होनी चाहिए जो ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं हमारे। मतलब मिसमैच ना हो जाए कि हमने खर्च करा 1,00,000 रुपए, लिख दिया 1,10,000 रुपए, तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जो हमारे अकाउंट्स में फिगर्स हैं, द सेम फिगर्स शुड बी मेंशन्ड इन द यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट।
देन इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट, ये भी सर्टिफाई करना है। इंटरनल कंट्रोल का मतलब हो गया कि जब हमारा प्रोजेक्ट इट में बी फॉर 1 ईयर और 2 ईयर 3 ईयर्स, तो एक रेगुलर चेकअप इंटरनली होता रहना चाहिए। अन इंटरनल कमेटी कैन बी फॉर्म बाय द प्रिंसिपल और बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कि हाँ बीच बीच में हम उसको चेक करते रहें कि भाई कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो बीच में हम चेक करते रहेंगे, तो बीच में गड़बड़ हो भी रही होगी, अगर कुछ मिस एप्रोप्रिएशन है या कुछ हम गलत या भटक रहे हैं कहीं प्रोजेक्ट में, तो हम उसको चेक कर सकते हैं। पूरी टीम रहती है, तो बीच बीच में वो रेगुलर इंस्पेक्शन कर सकती है कि वी आर डूइंग एज पर द रिक्वायरमेंट्स और एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो कोई डेविएशंस अगर हो रहा है, कोई डेविएट अगर हम हो रहे हैं, तो वो चेक हो सकता है। नेक्स्ट हमें सर्टिफाई करना है कि नो ट्रांजेक्शन्स इन वायलेशन ऑफ एक्ट, रूल्स, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस एंड स्कीम गाइडलाइंस। कोई भी ट्रांजेक्शन हमने गाइडलाइंस के अगेंस्ट नहीं करा है। देन वी हैव टू अपॉइंट की फंक्शनरीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली असाइन, कि जो हमने एक प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर हो गया, चीफ इन्वेस्टिगेटर, देन वी हैव अपॉइंटेड रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च असिस्टेंट्स वी हैव अपॉइंटेड। तो उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, जिसको जो जो काम करना है, डेट आर क्लियरली असाइंड, और सब अपना अपना काम क्लियरली उस हिसाब से कर रहे हैं। देन सेफ गार्डिंग पब्लिक फंड्स, एसेट्स, वॉचिंग आउटकम्स एंड अचीवमेंट्स, ये भी सब हम देख रहे हैं कि जो पब्लिक फंड्स हैं, पैसा क्योंकि मिल रहा है, डेट इज द पब्लिक फंड्स, वो आपका प्राइवेट फंड पैसा नहीं है, डेट इज द फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, अमाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। और जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं उसका कोई आउटकम भी होना चाहिए, मीन्स हम पैसा यूज कर रहे हैं तो इट शुड बी बेनिफिशियल टू एनीबडी, और क्या अचीवमेंट्स उसके होने हैं ये भी हमें चेक करना है। जो हमारे एसेट्स हैं उनका भी हमें सेफ गार्ड करना है। अगर हमने कोई इक्विपमेंट्स खरीदते हैं तो वो इक्विपमेंट्स हमारे नहीं हैं, वो गवर्नमेंट के फंड्स के हैं, एंड नाउ इट बिलोंग्स टू योर इंस्टीट्यूशन, इट मे बी योर कॉलेज, इट मे बी ऑफ योर यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर वो रखे रहते हैं। फिर हमें सर्टिफाई करना है कि ओनली एरियाज विच वर टू बी कवर्ड हैव बीन कवर्ड, कि जिस एरिया को हमें कवर करना है, जैसे मान लीजिए कोई हमें प्रोजेक्ट हमने लिया है फॉर लिटरेसी पर्पस, कि हमें कुछ एरिया है, मान लिया आप मध्य प्रदेश में कहीं रहते हैं, तो मान लीजिए भोपाल में हैं आप, और वहाँ पे कुछ एरिया हैं जहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी अगर रह रहे हैं, हम उनको पढ़ाने का हमने कुछ प्रोजेक्ट लिया है, या जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं हमने उनके लिए कुछ हेल्प के लिए कोई प्रोजेक्ट लिया है, तो एरिया जो हमने चूज़ करा है वो भोपाल का करा है, तो हमें फिर उसी एरिया में काम करना है। ऐसा नहीं है कि भाई हमने प्रोजेक्ट वहाँ का ले लिया, दिखा दिया, उसी इंदौर का दिखा दिया कि हमने इंदौर में काम करने लग गए और प्रोजेक्ट है भोपाल के लिए, तो उस एरियाज में ही हमें काम करना है। अगर फिजिकली वर्क हमें जाके करना है तो वी हैव टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर एरिया विच वाज मेंशन्ड इन आवर प्रोजेक्ट। देन एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ स्कीम वाज इन प्रपोर्शन ऑथराइज, जैसे मैंने बताया कि एक लिमिट बन जाती है कि जो टोटल अमाउंट हमें मिल रहा है तो 30% इस पर्पज़ के लिए खर्च करना है, 30% दूसरे पर्पज़ के लिए, 10% फॉर अनदर पर्पज़। तो जो एक्सपेंडिचर है वो उस अकॉर्डिंगली ही स्पेंड होना चाहिए। एंड फिजिकल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एज पर रिक्वायरमेंट्स, जो फिजिकली परफॉर्मेंस हमें वर्क करना है, फिजिकल वर्क करना है, या जो फाइनेंशियल वर्क हम कर रहे हैं, वो सब एज पर रिक्वायरमेंट और एज पर गाइडलाइंस ही होने चाहिए। तो ये सर्टिफाई हमें करना होगा, तब फिर हम नीचे साइन करेंगे, तब ये सर्टिफिकेट प्रमाणित किया जाएगा कि हाँ भाई ये सब चीज़ें फुलफिल हो रही हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो जो पैसा हमें मिलता है वो हमारे अकाउंट में, या तो इसके लिए आप अलग अकाउंट खुल सकता है, या जो कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का अकाउंट है उसमें आपके पैसे आ जाते हैं। तो ये डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कि किस तरह से उनका ट्रेडिशन है या किस तरह से उनका काम होता है। तो उसी तरह से हमें ये अपनी जो प्रॉफिट एंड लॉस हम बनाते हैं, अपना स्टेटमेंट बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर, तो वहाँ पर हमें ये दिखाना पड़ेगा। और जो हम जो उसे रिकग्नाइज करेंगे फंड्स को, तभी रिकग्नाइज करेंगे जब हमें ये लगता है, एक तो पैसा मिल जाना चाहिए, हाँ अकाउंट्स में हम तभी दिखाएंगे जब पैसा हमें मिल गया है, प्लस वॉट एवर द टर्म्स एंड कंडीशंस वी आर इन अ पोजीशन टू फुलफिल दोज टर्म्स एंड कंडीशंस। कभी कभी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती है प्रोजेक्ट में कि विच इज नॉट फिजिबल, या हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, तो बेटर है कि उस फंड्स को आप वापस कर दें, अगर वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इस तरह की आ जाती हैं कि जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है।
मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं होती, लेकिन मान लीजिए आपके लिए वो पॉसिबल नहीं है, कहीं ऐसे एरिया के लिए आपको प्रोजेक्ट मिल गया जहाँ पर आपका जाना पॉसिबल नहीं है, हो सकता है आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो या कुछ इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप वहाँ पे उस प्रोजेक्ट को नहीं कर सकते, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस इफ़ यू आर नॉट एबल टू फुलफिल, इट इज़ बेटर टू रिटर्न दैट अमाउंट। तो हम प्रोजेक्ट को अपने रिकॉर्ड्स में तभी लिखेंगे, उस फंड्स को तभी लिखेंगे जब पैसा हमें मिल जाए, प्लस हम उस कंडीशंस को, उनकी कंडीशन जो है उनको हम पूरा कर सकें। अब देखिए यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन मैंने ICSSR का लिया हुआ है, इसको हम देखेंगे कि किस तरह से हम ये फॉर्मेट बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि देर इज़ अ लिमिटेशंस, कि जो टोटल अमाउंट हमें मिल रहा है उसकी लिमिटेशंस होती हैं कि पैसा कहाँ कहाँ पे खर्च करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सीरियल नंबर 1 में आप देखेंगे कि रिसर्च स्टाफ, यू हैव टू अपॉइंट द रिसर्च स्टाफ, फुल टाइम पार्ट टाइम कैसे भी आप रख सकते हैं। तो टोटल ये ICSR का की कंडीशंस हैं कि जो टोटल अमाउंट आपको मिल रहा है, आउट ऑफ दैट यू कैन नॉट स्पेंड मोर देन 45% ऑन द सैलरीज ऑफ द रिसर्च स्टाफ, क्योंकि रिसर्च स्टाफ रखा है तो उनको केवल आपको सैलरी देनी है। तो टोटल यानी कि अगर 1 लाख रुपीज मिल रहा है आपको, तो मैक्सिमम 45,000 तक आप उनको सैलरी दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं देंगे। फील्ड वर्क में जाना है आपको, कुछ सर्वे आपको करने हैं, तो उसकी ट्रैवलिंग है, लॉजिस्टिक्स हैं, बोर्डिंग वगैरह है, वहाँ पे रहना वगैरह हो सकता है, कहीं भी आप एरिया में जा रहे हैं, तो उसके लिए बताया गया है कि नॉट एक्सीडिंग 35%, कि उससे ज़्यादा आप वहाँ पे खर्च नहीं करेंगे। इक्विपमेंट्स आपको खरीदने हैं, कोई अगर आपके पास पहले से कुछ नहीं है तो यू हैव टू नीड अ कंप्यूटर, प्रिंटर, जो भी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मटेरियल है, बुक्स, जर्नल, सॉफ्टवेयर खरीदने हैं। तो जो भी आपको कुछ खरीदना है, इक्विपमेंट्स और स्टडी मटेरियल है, डेट शुड नॉट एक्सीड 12% ऑफ द टोटल अमाउंट। और कुछ कंटिजेंसी के लिए छोटी मोटी एक्सपेंसेस हो जाते हैं, उसके लिए हम मैक्सिमम 5% हम रख सकते हैं। और जब ये हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तब रिपोर्ट पब्लिश होगी, पूरे प्रोजेक्ट को हम पब्लिश करा सकते हैं, तो उसका 5 to 6% उसके लिए भी रखा गया है। तो टोटल लगभग 100% हो जाएगा। जो इंस्टीट्यूशनल ओवरहेड्स हैं उसके लिए भी फंड्स आपको मिलता है कि एफिलेटिंग इंस्टीट्यूशनल ओवरहेड्स एट द रेट 5% ऑफ द अप्रूव्ड बजट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1 लाख। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस में आप हैं तो उनकी भी आप रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। आप अपने कॉलेज में अगर आप काम कर रहे हैं तो कॉलेज में आपको कॉलेज के का इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए भी 5% के आसपास अमाउंट मिल सकता है। अब ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कितना प्रोजेक्ट है आपका, कैसे कैसे करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अ लिमिटेशंस विच आर मेंशन्ड बाय द ICSSR, कि आपको किस किस में कितना कितना मैक्सिमम पैसा खर्च करना है। रेमुनरेशन की हम बात करते हैं प्रोजेक्ट स्टाफ की, तो उसकी भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होती हैं। प्रोजेक्ट स्टाफ में आपको प्रोजेक्ट डायरेक्टर आपके हो गए, वो वर्क करेंगे आपका, उनका ड्यूरेशन हो गया। और किस किस को आपको रखना है, देखिए लिखा हुआ है रिसर्च एसोसिएट्स हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि किन किन लोगों को आपको रखना है डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोजेक्ट। तो रिसर्च एसोसिएट हो सकते हैं जिनको यहाँ पे दे रखा है कि लगभग आप 20,000 रुपीज़ पर मंथ तक आप उनको सैलरी दे सकते हैं। उनकी क्वालिफिकेशंस भी हैं कि ही और शी शुड बी अ पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल साइंस डिसिप्लिन विद 55% मार्क्स, नेट एमफिल PhD हो सकते हैं। रिसर्च असिस्टेंट हो सकते हैं, उनको आप लगभग 16,000 पर मंथ तक आप दे सकते हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशंस भी हैं, दे में भी PhD, एमफिल, पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं। फील्ड इन्वेस्टिगेटर हो सकते हैं, यू कैन गिव देम 50,000 रुपीज़ पर मंथ। उनके लिए कुछ कंडीशंस हो सकती हैं कि भाई कितने मंथ्स के लिए आपको रखना है, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं। और लास्ट में देखिए लिखा हुआ है रिट्रोस्पेक्टिव पेमेंट फॉर वर्क ऑलरेडी डन इज नॉट परमिसेबल, यानी कि अगर पीछे कोई आप काम कर चुके हैं उसके लिए आपको परमिशन या पैसे नहीं मिलेंगे। जब प्रोजेक्ट आपने अप्लाई करा है, व्हेन यू आर गेटिंग द फंड्स, उसके बाद ही आपको वर्क स्टार्ट करना है। आप कहते हैं कि पहले मैंने एक कंप्यूटर खरीद लिया था, पहले मैंने एक लैपटॉप खरीद लिया था, उसको मैं अपने यहाँ पर दिखा सकता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। और जो भी आप खर्चा करेंगे उनके इन्वॉइसेस, बिल्स आपके पास होने
चाहिए। अगर वो बिल्स वगैरह आपके पास नहीं होंगे तो फिर वो खर्चा नहीं माना जाएगा। तो इन्वॉइसेस आपको लेना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पिछली जो आपने कुछ खरीदारी कर चुके हैं वो इस प्रोजेक्ट में आप नहीं दिखा सकते। फंड्स लेने के बाद जब प्रोजेक्ट मिल गया है उसके बाद के ही इन्वॉइसेस आपके पास होने चाहिए। जो सिलेक्शन ऑफ रिसर्च स्टाफ आप करेंगे वो आपको एक एडवर्टाइज, ऐसा नहीं है कि आपने अपने कोई सगे संबंधी हैं उनको आपने रिसर्च असिस्टेंट बना दिया, रिसर्च एसोसिएट बना दिया। नो, आपको प्रॉपर एक एडवर्टाइजमेंट निकालना है न्यूज़पेपर में। देन देर विल बी अ सिलेक्शन कमेटी जिसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो सकते हैं, वन आउटसाइड एक्सपर्ट हो सकता है, नॉमिनी ऑफ द प्रिंसिपल और वाइस चांसलर और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हो सकता है, डीन ऑफ योर फैकल्टी हो सकते हैं, एचओडीज हो सकते हैं। तो जो भी कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी। दे विल टेक द इंटरव्यूज और उसके बाद ही रिसर्च एसोसिएट और रिसर्च असिस्टेंट अपॉइंट होंगे। और जो भी फील्ड वर्क होगा तो उसमें जो भी रूल्स रेगुलेशंस आपके इंस्टीट्यूट्स के हैं वो फॉलो करे जाते हैं। जो भी इक्विपमेंट्स आप परचेज करेंगे, बुक्स खरीद रहे हैं, जर्नल्स खरीद रहे हैं, डेट विल बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अगर आप कॉलेज में हैं तो ये सब चीज़ें कॉलेज में रखी रहेंगी, कॉलेज उसका ओनर बन जाएगा। और आईसीएसएसआर है या कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहे तो उनको वापस मंगा भी सकती है और जनरली नहीं भी मंगाते हैं, तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो आईसीएसआर वापस मंगा रहे हैं उन चीज़ों को तो आपको उनको रिटर्न करने पड़ेंगे, और नहीं मंगा रहे हैं तो डेट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ योर यूनिवर्सिटी और योर कॉलेज। तो देखिए, रिसर्च प्रोजेक्ट लेने के ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर आपके बहुत सारे टीचर्स रिसर्च प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, साइंस के टीचर्स हैं या अकाउंट्स के हैं, कॉमर्स के हैं या आर्ट साइड के हैं, तो कोई भी अगर चीज़ें खरीद रहे हैं, डेट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन और इट में बी बेनिफिशियल फॉर एवरीबॉडी। अगर आप लैब लैब में साइंस फैकल्टी हैं, लैब के लिए इक्विपमेंट्स बना सकते हैं, तो वो लैब इक्विपमेंट्स तो आ गए, प्रोजेक्ट आपका खत्म हो गया, लेकिन वो इक्विपमेंट्स दे आर ऑलरेडी इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आपकी लैब में रखे हुए हैं, तो इट में बी बेनिफिशियल फॉर ऑल। कोई भी उसको हेल्प ले सकता है, उनको यूज़ कर सकता है। योर स्टूडेंट्स, योर कलीग्स कैन यूज़ दोज इक्विपमेंट्स। तो ये फ़ायदा हो जाता है प्रोजेक्ट्स का कि फ्री में कॉलेज में को आपको इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इंस्टीट्यूशन में रीअप्रोप्रिएट एक्सपेंडिचर फ्रॉम वन हेड टू अनदर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम टू 5 to 7%। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे हमारा लिमिट दे रखी है 40%, लेकिन हमारा उसमें खर्चा ज़्यादा हो रहा है। तो जब खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम वी कैन टेक द प्रायर परमिशन ऑफ द आईसीएसआर और एनी रिसर्च एजेंसी जहाँ से हमें प्रोजेक्ट मिल रहा है कि हाँ भाई, हमारा इसमें खर्चा ज़्यादा हो रहा है, इसमें हमारा कम हो रहा है, तो कुछ थोड़ा एडजस्टमेंट करने के लिए करा जा सकता है। तो अगर सफिशेंट रीजंस हैं, सही हैं, तो आईसीएसआर इनको परमिशन दे सकता है कि भाई किसी में खर्चा कम करना है, किसी में ज़्यादा करना है, विद इन द ओवरऑल लिमिट। जो आपका मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ आपको मिल रहा है तो विद इन 1 लाख आप 5-10% इधर से उधर अमाउंट को कर सकते हैं, बट यू हैव टू टेक द प्रायर परमिशन फ्रॉम द रिसर्च एजेंसी। जो आपको ग्रांटिंग एजेंसी है जो पैसा दे रही है, वहाँ से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि हमारे फंड्स एक हेड से दूसरे हेड्स में हमारे थोड़े कम या ज़्यादा एडजस्टमेंट हमें करना है। आजकल जो सिस्टम चल रहा है वो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है, सब ऑनलाइन सिस्टम होता है। जो पैसा मिलता है वो भी ऑनलाइन हमें पता चल जाता है, ऑनलाइन अकाउंट में आ जाते हैं। हमें जो है सर्टिफिकेट्स या जो फॉर्म्स सबमिट करने हैं वो भी ऑनलाइन हो सकते हैं। तो जो भी फाइनल रिपोर्ट है या वॉट एवर वी हैव ऑडिटेड स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स हैं, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हैं, वो हमें ज़्यादातर अपलोड कर दिए जाते हैं वेबसाइट पर। कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि जिसको ये प्रोजेक्ट मिला है वो ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर गया, या उसकी डेथ हो गई, या कोई और डिसेबल्ड हो गए किसी रीजन से, प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा है, तब तो जो इंस्टीट्यूशन है वो दैट इंफॉर्मेशन मीन्स दैट इंस्टीट्यूशन विल गोइंग टू इन्फॉर्म दी आईसीएसआर और अकाउंट्स को सेटल करेगा। कुछ पैसे बच गए हैं तो उनको वापस कर दिया जाता है। कि अगर प्रोजेक्ट बीच में ही बंद करना पड़ रहा है तो जो इंस्टीट्यूशन है, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उसकी जिम्मेदारी है कि वो पैसा वापस कर दे और जो जो सामान लिया है वो सब कुछ वापस कर दिया जाता है। अब आप देखेंगे कि दीज आर द फॉर्मेट्स। जैसे मैंने आपको बताया था जनरल फाइनेंशियल रूल्स के अकॉर्डिंग, दिस इज फॉर्म 12A।
यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा। तो दिस इज जनरल फाइनेंशियल रूल्स 12A, फॉर्म ऑफ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, आप सब देख सकते हैं। तो इस तरह के ही फॉर्मेट होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है योर नेम ऑफ द स्कीम, जो भी स्कीम होगी, जो जिस स्कीम के अकॉर्डिंगली यू आर गेटिंग द प्रोजेक्ट, वो आप मेंशन करेंगे। वेदर रिकरिंग और नॉन रिकरिंग ग्रांट्स है। नॉन रिकरिंग हो गई कि बार बार आपको पैसा मिलता है, मीन्स योर प्रोजेक्ट इज फॉर 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर और 5 ईयर्स, तो आपको रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स मिलेंगी। नॉन रिकरिंग हो गया कि एक बार में ही आपको वन टाइम पेमेंट पूरा मिल गया है। फिर ग्रांट पोजीशंस हैं कि अब पैसा हमारे पास कैश इन हैंड कितना है, कुछ एडवांसेस हमें मिल चुके हैं, वो कितने हैं, टोटल अमाउंट हमें कितना है। नीचे आपको टेबल दी गई है। अगर आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में हैं तो अनस्पेंड बैलेंस आपके पास अकाउंट में हो सकता है। मान लीजिए आपको 2 लाख रुपीज़ पहले मिले, उसमें से 1000 आपके बचे हुए रखे हुए हैं, तो यू हैव टू मेंशन द अनस्पेंड बैलेंस की 1000 इज देयर। अगर आपके अकाउंट सेविंग्स अकाउंट है तो उसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, तो यू हैव टू मेंशन द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन दोज डिपॉजिट्स। लेकिन जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपका नहीं है। अगर आप देखेंगे कि जो अगर आपको 1 लाख रुपए अकाउंट में आया है, कुछ आपने खर्च कर दिया, कुछ बैंक में डिपॉजिट है, तो इफ़ यू आर अर्निंग इंटरेस्ट तो दैट इंटरेस्ट इज डज नॉट बिलोंग टू यू, तो इट इज़ बेटर टू रिटर्न दिस इंटरेस्ट टू दी गवर्नमेंट अकाउंट। आप गवर्नमेंट अकाउंट में उसको डिपॉजिट कर सकते हैं क्योंकि वो इंटरेस्ट आपका नहीं है। तो जो इंटरेस्ट आपने गवर्नमेंट को जमा कर दिया है तो वो आप मेंशन करेंगे, और ग्रांट रिसीव्ड जितनी भी हुई है उसका सैंक्शन लेटर होगा, डेट होगा, कितना अमाउंट आपको मिला है, यू हैव टू मेंशन, और टोटल फंड्स आपके पास कितने हो गए, उसमें से कितने आपने खर्च कर दिए, और कितना आप आज की तारीख में बैलेंस है, वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो दिस इज अ शॉर्ट स्पेसिमेन ऑफ दिस यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। कंपोनेंट वाइज भी आपको ग्रांट्स मिलती हैं, तो उसमें भी आपको मेंशन करना है कि जो आपका टोटल अमाउंट है कि जनरल कितना खर्च करा है, सैलरी में कितना खर्च करा है, और कितना आपने कैपिटल एसेट्स खरीदे, मींस व्हाट एवर इक्विपमेंट्स यू हैव परचेज्ड दैट यू हैव टू मेंशन इन दी इन दिस फॉर्मेट, और टोटल कितना अमाउंट आपके पास हो गया है। फिर ये सर्टिफाई नीचे लिखा होता है, सर्टिफिकेट आपको देना है कि जो भी कंडीशंस हैं, जिस जो भी हमें ग्रांट मिला है, वी आर फुलफिलिंग ऑल दोज कंडीशंस। जैसे पहला पॉइंट दे रखा है कि आर मेन अकाउंट्स एंड अदर सब्सिडी अकाउंट्स सब हम मेंटेन करते हैं, कि अकाउंट्स रजिस्टर्स हमने सब मेंटेन कर रखा है। जो भी इन्वॉइसेज आते हैं उसकी हमने अलग फाइल बना रखी है, अलग रजिस्टर्स बना रखे हैं जिसमें हम सब चीज़ें मेंशन करते रहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे, प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो बाद में गलत कुछ गड़बड़ होने के चांसेस हो सकते हैं। आप कुछ भूल सकते हैं, कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि बहुतों की आदत नहीं होती है, ऐसी बोले हमारे याद तो है ही कि इतना हमने यहाँ खर्च करा, इतना वहाँ खर्च करा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर अकाउंट्स, प्रॉपर रजिस्टर्स एक्सपेंडिचर के मेंटेन होने बहुत ही ज़रूरी है, और फिर वो टैली करने चाहिए कि जब हम यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बनाएं और जो हमारे अकाउंट्स हैं उनकी फिगर्स मैच करनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट इंटरनल कंट्रोल्स, कि पब्लिक फंड्स हैं, पब्लिक एसेट्स हैं, जो सामान हम खरीद रहे हैं, जो बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, जो अचीवमेंट्स होंगे, वो सब सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो इंटरनल कमेटी उनको बीच बीच में रेगुलर मॉनिटरिंग उनकी करती रहेगी। थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता है, ये भी आपको सर्टिफाई करना है कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स जो भी हम कर रहे हैं वो किसी एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस के वायोलेशन में नहीं है, कोई गलत काम हम नहीं कर रहे हैं, कोई इलीगल वर्क हम नहीं कर रहे हैं। और जो फंक्शनरीज हैं, जो डिग्निटरीज हैं, जो हमारे अपॉइंटमेंट्स हमने करे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्लियरली डिफाइंड हैं, क्लियर टर्म्स में बताया गया है, कोई कंफ्यूजन उसमें नहीं होना चाहिए। देन द बेनिफिट्स वर एक्सटेंडेड टू द इंटेंडेड बेनिफिशियरी, जिस पर्पस के लिए प्रोजेक्ट है या जिस सोसाइटी को बेनिफिट देने के लिए हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो बेनिफिट उनको मिल रहा है या मिलेगा या नहीं मिल रहा है, वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जिस एरिया में, जैसे मैंने पहले बताया, जिस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, जहाँ का ये प्रोजेक्ट है, वही वहाँ पर वो कवर होना चाहिए, कहीं दूसरी जगह पर हम अपना प्रोजेक्ट ना करें। और जो एक्सपेंडिचर है ऑन डिफरेंट कंपोनेंट्स, वो भी उस प्रपोर्शन में ही होना चाहिए,
उससे भी खर्चा हमारा ज़्यादा ना हो जाए। खर्चा ज़्यादा हो जाएगा तो आपको अपने आप ही बियर करना पड़ेगा, और फिर आप, हो सकता है कि हम फिर कुछ गलत काम करने लगते हैं कि भाई हमारा पैसा ज़्यादा खर्च हो गया तो कहीं से बचा लें, कहीं से कुछ कर लें, तो फिर वो गलत हो जाता है। इसलिए जो भी खर्चा आप कर रहे हैं ये सर्टिफाई करें कि विद इन द लिमिट्स हम एक्सपेंडिचर अपना इनकर कर रहे हैं। ये भी हमें सर्टिफाई करना है कि वी हैव टू एंश्योर दैट फिजिकल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है, जो भी प्रोग्राम आपका है वो उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है, कि फिजिकली वर्क भी वैसे ही चल रहा है, फाइनेंशियल जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो भी उसी तरीके से हो रहा है एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस। और जो यूटिलाइजेशन फंड्स हैं उनका क्या आउटकम निकल कर आ रहा है वो भी हम मेंशन करते हैं। कुछ अनेक्स्चर्स 1 होते हैं, अनेक्स्चर 2 हैं, क्योंकि जब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है तो उसके साथ अनेक्स्चर्स भी हमें, एनक्लोजर्स भी लगाने पड़ते हैं, वो भी हम देखेंगे थोड़ा आगे। तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने फंड्स का यूटिलाइजेशन उसमें देना पड़ेगा। और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जैसे बताया मैंने आपको, वहाँ पे आप इसको अपलोड करेंगे। और नीचे देखिए सिग्नेचर्स दे रखे हैं, जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उसके सिग्नेचर होंगे, और जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, जैसे फाइनेंस ऑफिसर होता है यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में भी, आपके जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो सकते हैं या जो भी फाइनेंस का मैटर देखते हैं, कैशियर टाइप हो सकते हैं, वो जो भी हेड होगा फाइनेंस का उनके सिग्नेचर कर दिए जाएंगे। वो सिग्नेचर करेंगे तब ये रूल्स रेगुलेशंस आपके कंप्लीट माने जाएंगे, मीन्स सब कुछ आपका सही हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज द फॉर्म 12B, ये फॉर्म ऑफ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको सर्टिफाई करना है कि जो ग्रांट आपको मिली सैंक्शन अंडर, जो भी नंबर आपका होगा, डेट होगी, और हमने यहाँ पे आप ये मेंशन कर रहे हैं कि जो भी फंड्स आपको मिला है हैज़ बीन यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज सैंक्शनड, और जो बैलेंस हमारा बचा हुआ है वो हमारे अकाउंट्स में है, और अगर प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो वी आर सरेंडरिंग इन टू द गवर्नमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपको 1 लाख रुपीज मिले हैं, लेकिन इफ यू हैव स्पेंट सपोज 90,000 रुपीज, 10,000 बच गए हैं, तो यू हैव टू रिटर्न दैट 10,000 रुपीज टू दी गवर्नमेंट। तो वो आपको वापस करने होते हैं कि खर्चा नहीं कर पाए आप, बच गया है पैसा, तो यू हैव टू रिटर्न इट टू द गवर्नमेंट। और ये भी मेंशन करेंगे, यहाँ पे लिख रहा है देखिए सेकंड पॉइंट में भी, कि जो भी कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने सब अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है। और नीचे सिग्नेचर सबके हो जाएंगे, जो भी इनके प्रोजेक्ट हेड होंगे, जो चीफ इन्वेस्टिगेटर होंगे, उनके सिग्नेचर हो जाएंगे, उनका डेजिग्नेशन वगैरह लिख दिया जाएगा। तो देखिए इस तरह के फॉर्मेट्स हमें बनाने होते हैं। सबके फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, बस आपको स्टडी करनी है कि जब भी आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, वो आपको वहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा कि, और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने जो अकाउंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, जो भी आपको रखना है मेंटेन, वो उसके हिसाब से ही आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे दिस इज अनेक्स्चर 1। यहाँ पर आप देखेंगे कि स्पेसिफिक अचीवमेंट्स आपको बताने हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या आप अचीवमेंट्स दे पा रहे हैं, कि जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं तो उसका अचीवमेंट क्या निकल कर आ रहा है, आउटकम्स क्या आ रहे हैं, और इज देयर एनी चैलेंजेस और एनी शॉर्टकमिंग्स, कि भाई हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसमें ये परेशानियां हमें आ रही हैं, दीज आर द चैलेंजेस, और ये हम लिमिटेशंस हो सकती हैं, कुछ शॉर्टकमिंग्स हो सकती हैं, तो डेट अगेन यू हैव टू मेंशन। तो ये दिस इज द अनेक्स्चर 1। हर इंस्टीट्यूशन का जो रिसर्च एजेंसी है उनके अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि सब में फॉर्मेट, जो चीज़ें अंदर मांगी गई हैं, जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है, डेट इज़ नियरली द सेम, बट थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट सबका अलग हो सकता है। तो आपको अपने अचीवमेंट्स भी बताने हैं कि जो आपका प्रोजेक्ट है व्हाट आर इट्स अचीवमेंट्स, और वेदर दे आर फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर प्रोजेक्ट, जो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य थे आपके, वेदर दे आर फॉलोइंग और नॉट। दिस इज द अनेक्स्चर 2। ये क्वांटिफिएबल आउटकम्स हैं, कि ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव था और उसका आउटकम क्या निकला, वो हम फुलफिल कर पाए कि नहीं कर पाए, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। कि जैसे होता है ना कि 2-3 ऑब्जेक्टिव्स आर देयर, तो उनका हमें बताना है कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है उसका हमने कितना आउटकम निकल कर आ गया, कितना हम उसे फुलफिल कर पाए हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज देयर, उसको हम पूरा कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। दिस इज द नेक्स्चर 3।
ये देखिए ये फॉर्मेट है रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फॉर्मेट है। तो इसमें भी आप देखिए मेंशन कर रहे हैं टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट का टाइटल है यू हैव टू मेंशन, जो फंडिंग एजेंसी है उसको मेंशन करेंगे, डेट ऑफ स्टार्ट एंड कंप्लीशन ऑफ योर प्रोजेक्ट, अमाउंट कितना मिला है, और वेदर फाइनल यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट आपने सबमिट कर दी है या नहीं कर दी गई है, डेट यू हैव टू मेंशन। तो सब चीज़ें तभी आप कर पाएंगे जब आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन रहेंगे। और टाइमलाइन आपको पता होना चाहिए कि कब कब हमें ये फॉर्मेट्स सबमिट करने हैं। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी उसमें मेंशन होगा कि एट रेगुलर इंटरवल्स यू हैव टू सबमिट दीज डॉक्यूमेंट्स। क्वार्टरली जैसे मैंने बताया, इट में भी क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली, या कुछ और अलग हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको ये डेडलाइंस पता होनी चाहिए, और उस डेडलाइंस से पहले ही आपको ये सब चीज़ें आपको सबमिट करनी पड़ेंगी। ये आप देखेंगे। अब वैसे मैंने बताया कि इफ़ योर प्रोजेक्ट इज़ फॉर सपोज 2 years, 3 years और 4 years और 5 years, तो यू हैव टू रिक्वेस्ट फॉर एनुअल इंस्टॉलमेंट, कि अगर एक बार आपको इंस्टॉलमेंट मिल गई बट नाउ यू वांट अनदर इंस्टॉलमेंट फॉर नेक्स्ट ईयर, तो यू हैव टू अप्लाई फॉर डेट। और उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको पिछला यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि जो पिछला पैसा हमें मिला था डेट वाज फुली यूटिलाइज्ड एंड नाउ वी आर अप्लाइंग फॉर द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो वहाँ पर भी देखिए आपको ये रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं फॉर एनुअल इंस्टॉलमेंट विद अप टू डेट स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। यहाँ पर आप देखेंगे जो पहले हमें पैसा मिला, सैंक्शन लेटर मिला, उसका नंबर क्या था, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है, सैंक्शन रिवाइज्ड अगर हो जाती है, कई बार ऐसा होता है ना कि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए अगर 5 years का प्रोजेक्ट है और हमने 5 लाख रुपीज़ का रखा है, लेकिन महंगाई बढ़ती रहती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि विद दोज 5 लाख रुपीज़ वी आर अनेबल टू कंप्लीट आर प्रोजेक्ट, तो हम रिवाइज्ड प्रोजेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कि भाई महंगाई को ध्यान में रखते हुए इन्फ्लेशन बहुत हो गया है, तो हम 5 लाख में पूरा नहीं कर पाते हैं, और इसको आप 5,50,000 कर लीजिए या 5 लाख को 6 लाख कर लीजिए। तो इसके लिए भी अगर रिवाइज्ड हो गया है प्रोजेक्ट तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट हो गया, ड्यूरेशन कितना है, और देखिए 6 पॉइंट यहाँ पर दे रखा है कि ग्रांट रिसीव्ड इन ईच ईयर, कि फर्स्ट ईयर में कितना मिल गया, सेकेंड ईयर में कितना मिल गया, थर्ड ईयर में कितना मिल गया, और कितना हमने खर्चा कर दिया है, और कितना फंड्स हमें आगे चाहिए फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो ये सब आप चीज़ें मेंशन करेंगे। अब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की बात है तो आपको पिछले रिकॉर्ड्स भी आपको सही से मेंटेन रखने हैं, वो रहने चाहिए, तभी आप इन चीज़ों को, फॉर्म्स को आप फिल कर पाएंगे। फिल तभी कर पाएंगे जब पिछला रिकॉर्ड आपका मेंटेन रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका कंज्यूमेबल आइटम्स हैं जो रिकरिंग नेचर के हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये एनेक्स्चर ए का ही है कि आपने जो खर्चा कर रहे हैं वो भी अलग अलग हेड्स में भी आपको यहाँ पर बताना है कि सैंक्शन हेड्स कौन सा है, मैन पावर में कितना खर्च कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स में कितना कर रहे हैं, कंज्यूमेबल्स हैं, अदर कॉस्ट हैं, कंटिजेंसी हैं, कुछ और ओवरहेड चार्जेस हैं। तो वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि कितना एक्सपेंडिचर आपने यहाँ पर कर दिया है, कितना बैलेंस बच गया है, और कितना नेक्स्ट ईयर के लिए आपको रिक्वायरमेंट है। और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं वो उसको साइन करेंगे, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर साइन करेंगे, और सबमिट कर दिया जाता है। क्योंकि जो हम खर्चा कर रहे हैं वो कंज्यूमेबल आइटम्स में कर रहे हैं और कैपिटल एसेट्स में खर्च करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, दीज आर द मैन पावर, जो हम खर्चा कर रहे हैं मैन पावर है, कंज्यूमर्स हैं। जो परमानेंट इक्विपमेंट है वो हमारी कैपिटल एसेट हो जाती हैं, वो हमेशा हमारे पास रहेंगी जब तक वो चलती रहेंगी। कोई इक्विपमेंट्स हैं, कोई मशीन आपने खरीदी है, कुछ लैब इक्विपमेंट्स आपने खरीदे हैं, तो वो परमानेंट हमारे पास रहते हैं। जो बाकी सैलरीज दे दिया या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं वो तो खर्चा है, वो ख़त्म हो गया पैसा। लेकिन जो हम इक्विपमेंट्स खरीदते हैं वो हमेशा हमारे पास, हमारे कॉलेज में या हमारी यूनिवर्सिटी में वो रखे रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ग्रांट्स इन एड जनरल रेवेन्यू, जो मैंने आपको बताया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं, जो सैलरीज में, ट्रैवलिंग में, कंटिजेंसी में हम खर्च करते हैं, उसका डिटेल आपको अलग देनी है। और जो कैपिटल एसेट्स हैं जहां पर हम इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं उसको हमें अलग देनी है। तो यहाँ पर देखिए रेवेन्यू के लिए है, जो जनरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं हमारे, कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट वगैरह आपने सब बता दी, स्टेटमेंट बता दिया, ग्रांट रिसीव्ड कौन कौन सी ईयर में कितनी कितनी मिली है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कितना आपको मिला है, कितना इंटरेस्ट आपको मिला है, टोटल आपको यू हैव टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स। तो सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन
you have to mention in these formats. यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे मैंने बताया कि मैन पावर में कितना खर्च हो रहा है, कंज्यूमेबल्स में, ट्रैवलिंग में, डोमेस्टिक या फॉरेन हो सकता है कि अगर आपको फॉरेन से कोई प्रोजेक्ट मिला है, आपको फॉरेन जाना है, विदेशों में जाना है, उस तरह का प्रोजेक्ट है, तो फॉरेन में आपने कितना ट्रैवलिंग खर्च करा, फ्लाइट्स वगैरह के टिकट्स होते हैं, कंटिजेंसीज हैं या कोई अदर ओवरहेड्स आपके हो सकते हैं, तो कितना फंड्स एलोकेट करा, फर्स्ट ईयर में कितना एक्सपेंडिचर हुआ, इन सेकेंड ईयर, इन थर्ड ईयर, इन फोर्थ ईयर कितना कितना आपका एक्सपेंडिचर हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, और नीचे आप साइन कर देंगे, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर साइन करेंगे, और जो फाइनेंशियल अथॉरिटी होगी ऑर्गेनाइजेशन की वो साइन करेंगे, डेट डालेंगे, सिग्नेचर कर देंगे। तो दीज आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि एक्सपेंडिचर मैंने बताया ना, दो तरीके हम बांट सकते हैं, जो कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया जो रेगुलर खर्च हो जाता है, और हमारा दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो हम कुछ एसिड्स खरीदते हैं, जो कुछ इक्विपमेंट्स हम खरीदते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बाद में भी रखे रहते हैं। तो ये कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने जाते हैं। ये आप देखेंगे कि कैपिटल एसेट्स से रिलेटेड है ये फॉर्मेट। जैसे मैंने बताया कैपिटल एसेट्स को इक्विपमेंट्स हम खरीद रहे हैं, तो फॉर्मेट वही है, बस फर्स्ट ईयर में कितना पैसा आपने खर्च करा, सेकंड ईयर में मिला, थर्ड ईयर में कितना मिला, फोर्थ ईयर में कितना मिला, ये तो अमाउंट रिसीव्ड हो गया, और कितना हम एक्सपेंडिचर करेंगे वो आगे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे मशीन इक्विपमेंट्स है, मटेरियल एंड सप्लाईज है, कुछ मेजर वर्क्स कराया है आपने। कई की जगह ऐसा हो सकता है कि हमें कुछ कंस्ट्रक्शन कराना पड़ सकता है, कहीं हम फील्ड में वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ सकता है, कोई कोई वॉल खड़ी करनी है, कोई रूम बनाना है, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट। तो इस तरह का प्रोजेक्ट है जहाँ पे हमें कुछ मटेरियली कंस्ट्रक्ट कराना है, तो ये हमारे सब कैपिटल एसेट्स कहलाए जाते हैं। मशीन्स इक्विपमेंट्स हमने खरीद ली, मटेरियल कुछ खरीदा है हमने, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, इनमें हमने सब में कितना एक्सपेंडिचर हम खर्च कर रहे हैं वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर चीफ इन्वेस्टिगेटर साइन करेंगे, और फाइनेंशियल अथॉरिटी जो कॉलेज की है, इंस्टीट्यूशन की है, यूनिवर्सिटी की है, वो उसको साइन करेंगे। तो यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को कि दो तरीके के हमारे एक्सपेंडिचर हो गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कुछ हमारे रेगुलर खर्चे हमारे हो गए, वो तो वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन जो कैपिटल एसिड्स पे हम खर्च कर रहे हैं उससे हमारी प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है, एसिड्स जनरेट हो जाते हैं, और वो एसिड्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रखे रहते हैं, उनको हमारे स्टूडेंट्स, हमारे कलीग्स या हम उनको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ प्रोजेक्ट से हमें कुछ बनाना है, कुछ हमें कंस्ट्रक्शन कर लिया कॉलेज में, तो वो जो कंस्ट्रक्शन हमें करा है वो आगे भी काम आ सकता है। कुछ इक्विपमेंट्स हमने खरीदे हैं, लैब इक्विपमेंट्स हैं, वो बाद में भी, मान लीजिए हमने माइक्रोस्कोप खरीद लिया, अब माइक्रोस्कोप तो बाद में भी काम आ सकता है, हमारे स्टूडेंट्स उसको एक्सपेरिमेंट्स के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। तो यही बेनिफिट होता है रिसर्च प्रोजेक्ट का। अपना बेनिफिट तो हमें हो ही रहा है कि हमारे प्रमोशंस होते हैं या जो भी चीज़ है उसमें हमारे पॉइंट्स मिल जाते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट्स के, अपना फ़ायदा तो ये हो गया, एक हमारा नाम हो जाता है भी हमने ये प्रोजेक्ट्स करे हैं, गुडविल बनती है हमारी, प्लस जो बेनिफिट्स बाद के लोगों के लिए हो सकते हैं, जो हमने सामान खरीदा है वो हमारे कलीग्स हैं, स्टूडेंट्स के काम आ सकते हैं। ये भी देखेंगे आप, एक प्रोजेक्ट का ये फॉर्मेट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है। यहाँ पर देखिए इन्होंने, क्योंकि मैंने बताया ना हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ी अलग अलग रखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो रिसर्च, जो भी स्टडी आप कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सपेंडिचर के आइटम्स दे रखे हैं, प्रोजेक्ट स्टाफ आपका कितना है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर आप रहेंगे, तो यहाँ पर देखिए बना रखा है कि वो ऑनररी पोस्ट होती है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आपको रखने हैं, रिसर्च स्टैटिस्टिकल ऑफिसर आप रख सकते हैं, सबके अमाउंट भी बता रखे हैं कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं उनको आप 25,000 तक दे सकते हैं, रिसर्च ऑफिसर हैं या स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हैं उनको 20,000 तक आप दे सकते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स हैं, इनमें भी रिसर्च असिस्टेंट्स, तो उनको 10,000 दे सकते हैं। जो ICSSR में देखा था उसके अमाउंट अलग थे। तो जैसे मैंने बताया हर रिसर्च एजेंसी, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपका फंडिंग एजेंसी है, वो अलग अलग उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं। टाइपिस्ट हो सकता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो सकता है, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट बन रहा है पूरा, उसकी रिपोर्ट भी बनेगी तो टाइपिंग वाला भी चाहिए, तो उसको आप 7,000 आप दे सकते हैं।
जो भी जितना प्रोजेक्ट है, तो उसके लास्ट के टाइम पे उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो फॉर हाफ ऑफ द पीरियड उसको आप रख सकते हैं। तो ये तो सैलरी पार्ट हो गया। उसके बाद अदर अदर एक्सपेंडिचर आपके हो सकते हैं। ट्रैवलिंग कॉस्ट हो गया, क्योंकि सर्वे करना है, फील्ड में जाना है आपको। प्रिंटिंग के लिए खर्चा हो सकता है, रिपोर्ट प्रिंटिंग करेंगे, डाटा प्रोसेसिंग चार्जेस हैं। कंसल्टेंसी के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, आपको कहीं कंसल्ट करना है। कंटिजेंसी हो सकती है, या अदर ओवरहेड्स चार्जेस हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये भी फॉर्मेट है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। आप देखेंगे द इंफॉर्मेशन इज नियरली द सेम। जैसे आईसीसीआर में जो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं है वही यहाँ पर है। उसी तरह से ये इनके भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बस अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इनका आप सर्टिफिकेट देखेंगे, दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीएसटी का ये प्रोजेक्ट के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है। इसमें भी देखेंगे आप वही चीज़ें हैं। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का नाम होगा, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो लेटर आपको मिला है, सैंक्शन लेटर, वो होगा, उसका नंबर आप डालेंगे। हेड ऑफ अकाउंट्स एज गिवन टू द ओरिजिनल सैंक्शन लेटर, जो जब आप खर्च करेंगे, अमाउंट कितना आपने लिया है, अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ है, टोटल अमाउंट अवेलेबल कितना है आपके पास, एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपने कितना कर दिया है, कितना बैलेंस आपके पास बच रहा है, अनस्पेंड अमाउंट कितना है, ये सब चीज़ें आपको मेंशन करने पड़ेंगे। और कितना अमाउंट आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर भी देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट का स्पेसिमेन यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है। यहाँ पर भी वही सब चीज़ें हैं, बस द फॉर्मेट इज नियरली डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट। ये आप देखेंगे, इनका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हो गया कि सर्टिफाइड एट आउट ऑफ रुपीज़, जितना भी आपको पैसा मिला ड्यूरिंग द ईयर इन फेवर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू दैट लेटर नंबर, रेफरेंस लेटर डालेंगे। इतने रुपीज़ आपके पास बच गए हैं, बैलेंस इन योर अकाउंट, अनस्पेंड बैलेंस है आपका, और कितना सम आपने यूटिलाइज कर लिया है, डेट यू हैव टू मेंशन। अब जो बैलेंस बच गया है वो हम प्रोजेक्ट अगर हमारा ख़त्म हो गया तो वी आर रिटर्निंग इट, वी आर सरेंडिंग टू द गवर्नमेंट। और किस तरह से हम सरेंडर करते हैं, ऑनलाइन सबमिशन कर रहे हैं, या डिमांड ड्राफ्ट बना के भेज रखे हैं, या चेक के द्वारा हम वापस कर रहे हैं, डेट यू हैव टू मेंशन। अगर रिकरिंग है, अगले वर्ष लेना, तो अभी तो वापस नहीं करना है, लेकिन इफ सम अमाउंट इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ योर प्रोजेक्ट, तो वो आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट के अकाउंट में उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये लास्ट ईयर का अगर आपका प्रोजेक्ट का सर्टिफिकेट आप बना रहे हैं कि एट द एंड ऑफ योर प्रोजेक्ट, तो कि अपना इतना अमाउंट हम सरेंडर कर रहे हैं। और नीचे देखेंगे आप जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है, ही और शी हैज़ टू साइन। जो अकाउंट्स ऑफिसर हैं आपके, या रजिस्ट्रार जो भी हैं यूनिवर्सिटी में, वो साइन करेंगे, और हेड ऑफ योर इंस्टीट्यूशन इसको साइन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इसलिए डिफरेंट आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के सर्टिफिकेट आपको बता रखे हैं कि भाई इस तरह से आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। प्रोजेक्ट क्या मतलब, सर्टिफिकेट किस तरह से आपको बनाने हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। उसी हिसाब से आप अपने अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन करेंगे, रजिस्टर्स अपने मेंटेन करेंगे। क्योंकि अगर ये फॉर्मेट पता नहीं होगा तो आपके रिकॉर्ड्स भी अलग तरीके से मेंटेन हो सकते हैं, और जब आप फॉर्मेट भरेंगे तो फिर वो रिकॉर्ड्स में आपको वो ढूंढने पड़ेंगे। तो पहले आप अपने सर्टिफिकेट, जब भी आपको प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, प्रोजेक्ट मिलता है, तो जो जो फॉर्म्स आपको फिल करने हैं, जो जो फॉर्मेट्स हैं, उनकी प्रॉपर स्टडी आप पहले कर लें, और उसी हिसाब से फिर आप अपने अकाउंट्स को, रिकॉर्ड्स को, आप रजिस्टर्स जो बनाएं, उनको उसी हिसाब से मेंटेन करें कि जब आप ये फॉर्मेट भरें तो आपको एकदम इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको एकदम अपने रिकॉर्ड से मिल जाए। नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है, और फिर चांसेस हैं कि कुछ गलत अमाउंट हमने भर दिया। कई बार हो जाता है कि हम गलत फिगर भर देते हैं, वो टाइपिंग एरर भी हो सकती है, या कुछ और पर्पस भी हो सकता है, कोई और रीज़न भी हो सकता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारे रिकॉर्ड्स भी उसी तरह से मेंटेन रहें कि जिससे कि हम ये फॉर्मेलिटीज़ अपनी पूरी आराम से कर सकें। तो इस तरह के फॉर्मेट्स हमारे होते हैं, और उसी हिसाब से आपको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बनाने हैं। हर एजेंसी, जो भी फंडिंग एजेंसी आपको, उसको अपने फॉर्मेट्स बता सकती है। चीज़ें लगभग वही हैं, जो अंदर कंटेंट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम है, बस फॉर्मेटिंग का डिज़ाइन बदल जाता है। कुछ
किसी के 2-3 पेज का फॉर्मेट हो सकता है, किसी का 4-5 पेज का हो सकता है। आपको रेगुलर अगर आपको मेंटेन करने हैं, नई इंस्टॉलमेंट्स लेनी है, तो ईच एंड एवरी ईयर यू हैव टू सबमिट योर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, और हर ईयर ईच एंड एवरी ईयर यू हैव टू अप्लाई फॉर द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। और तो इस जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो पिछला हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा। तो वो ये आपके पास रिकॉर्ड्स में मेंटेन रहने चाहिए, और जो भी आप सबमिट करें उसकी एक कॉपी हमेशा आपके पास होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई सबमिट करी या कोई हमने सामान बाई पोस्ट भेज दिया, अपने फॉर्म्स या लेटर्स, और हमने अपने पास एक फोटो कॉपी नहीं रखी, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि वे पिछली बार हमने क्या भरा था, तो वो ध्यान में नहीं रहता है। इसलिए जो भी हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसकी 1-2 कॉपी हमें अपने पास अपनी फाइल में रखनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे कि दीज आर द की पॉइंट्स फॉर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, कि ये बातें हमें ध्यान में रखनी है जब हम यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भरते हैं। फर्स्ट इज द अकाउंटिंग लेजर्स एंड ग्रुप्स। इफ यूटिलाइज सर्टिफिकेट हैज एक्सपेंडिचर हेड वाइज रिपोर्टिंग, एंश्योर लेजर्स एंड ग्रुप्स आर आल्सो अलाइंड विद द सेम। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने इक्विपमेंट्स खरीदे हैं, तो डिफरेंट इक्विपमेंट्स अलग अलग हैं, तो आपको अकाउंट्स भी अलग अलग हेड्स के ही बनाने हैं। जैसे आपने लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप अकाउंट आप अलग बनाएंगे, आपने प्रिंटर खरीदा तो प्रिंटर अकाउंट आप अलग बनाएंगे, कुछ और सामान आप खरीद रहे हैं तो वो अकाउंट आप अलग बनाएंगे, सैलरीज आप दे रहे हैं तो सैलरी अकाउंट अलग बनाएंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग अकाउंट आप अलग बनाएंगे। तो जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही आपको अकाउंटिंग अपनी करनी होगी। और ये मैंने पहले भी बताया कि अगर हम अकाउंट सही से नहीं बना पा रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वी कैन टेक द हेल्प ऑफ आवर कलीग्स, जो अकाउंट्स वगैरह जानते हों, जो लेजर्स वगैरह जर्नल लेजर्स बना सकते हों, उनकी हम हेल्प ले सकते हैं। तो अपनी कलीग्स की हेल्प हम ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। उनसे हम सीख सकते हैं कि भाई हमें ये चीज़ नहीं आती है, तो हम उनसे पूछ कर ये काम कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग लेजर्स प्रॉपर मेंटेन होने चाहिए। देन क्वार्टरली हाफ ईयरली यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हो सकता है। यहाँ पर देखिए आपको समझना है कि इफ वी आर सबमिटिंग आर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्वार्टरली, अगर हम 3 महीने में सबमिट कर रहे हैं तो वी हैव टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो अकाउंट हमने बनाया उसको क्लोज करना है, 3 महीने में उसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद हमें बैलेंस पता चल जाता है कि कितना बैलेंस हमारे उस अकाउंट में बचा हुआ है। तो यहाँ पर अकाउंट्स का मतलब हो गया कि हर एक हेड का अलग अलग एक डिस्क्रिप्शन हो गया। अगर हाफ ईयरली आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो हाफ ईयरली 6 महीने के बाद आपको अपने अकाउंट्स क्लोज करने पड़ेंगे, और फिर देखेंगे कि हमारे पास कितना बैलेंस बच रहा है। नो बैकडेट एंट्रीज टू बी पास्ड इन अकाउंट्स, ये भी ध्यान में रखना है। पिछली एंट्री जैसे मैंने बताया ना कि मेरे पास पुराना लैपटॉप है तो मैंने वही दिखा दिया कि मैंने ये खरीद लिया, अब उसका इन्वॉइस मेरा पुराना है तो उस पुराने इन्वॉइस को मैं नहीं लगा सकता हूँ। तो बैक डेट एंट्रीज हमें पास नहीं करनी चाहिए, जो पिछली डेट्स की हैं वो नहीं होनी चाहिए। जब हमें प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया है, जब हमें ग्रांट रिसीव हो गई है, उसके बाद ही खर्चे होने चाहिए। ऑन देन एरर्स टू बी रेक्टिफाइड थ्रू रेक्टिफिकेशन एंट्री, जो हम जनरल एंट्री बनाते हैं कुछ गड़बड़ हो गई है तो उसकी रेक्टिफिकेशन भी हाथ के हाथ ही कर देनी चाहिए। देन अप्रूवल फॉर वेरिएंसेस एंड डेविएशंस, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा सैलरीज में पैसा कम लग रहा है और ट्रेवलिंग में ज़्यादा लग रहा है, तो हम प्रायर सैंक्शन ले सकते हैं। वी हैव टू टेक द प्रायर परमिशन ऑफ द रिसर्च एजेंसी या फंडिंग एजेंसी से हम पहले ही परमिशन ले लें कि भाई हमें सैलरीज में कम खर्चा करना है, ट्रेवलिंग में ज़्यादा करना है, एंड इफ दे गिव अस अप्रूवल तो हम उस हिसाब से काम कर सकते हैं। तो प्रायर अप्रूवल हमें ले लेना चाहिए, हम अपनी मर्जी से खर्चा ना करें कि हमने किसी में बहुत ज़्यादा कर दिया, किसी में बहुत कम रह गया, तो वो नहीं होना चाहिए। तो पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ओनली इफ अलाउड बाय डोनर बिफोर हैंड, अगर एजेंसी ने कह दिया है कि आप खर्चा कर लीजिए बाद में सैंक्शन ले लीजिए तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो पहले आप परमिशन लें, उसके बाद ही खर्च करें अगर आपको कुछ अलग खर्च करना है या किसी हेड्स में ज़्यादा खर्च करना है। देन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने हैं। यू हैव टू एंश्योर टू मेंटेन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स एज पर डोनर रिक्वायरमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ये सर्टिफिकेट्स भेज रहे हैं, आपने लिखा है कि आई हैव परचेज्ड अ लैपटॉप एंड प्रिंटर, या ये लैब इक्विपमेंट्स हमने खरीदे हैं, अमाउंट, तो कभी कभी एजेंसी मांग सकती है कि आप उनके इनवॉइस जो हैं उनकी फोटो कॉपी भी आप भेजें। तो इसलिए आपको
जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं डेट यू हैव टू मेंटेन प्रॉपरली। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स भी आपके पास होने चाहिए। जो भी आप सैलरी दे रहे हैं, इफ़ यू आर गिविंग सैलरी टू योर रिसर्च असिस्टेंट जो आपने अपॉइंट करे हैं फॉर द टाइम बीइंग 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो उनको अगर सैलरी भी दे रहे हैं तो उनसे भी रिसीविंग आप लेंगे और उसको अपने रिकॉर्ड्स में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली सैलरी दे दी, आप सैलरी उसे दे रहे हैं तो उससे आप साइन कराएंगे रिसीविंग पर कि यस दिस पर्सन हैज रिसीव्ड सच एंड सच अमाउंट ऑन सच एंड सच डेट। तो उस का डॉक्यूमेंट को भी आप अपने पास रखेंगे। हो सकता है कि फंडिंग एजेंसी आपसे प्रूफ मांगे। ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह हो सकते हैं, और अगर कैश दे रहे हैं तो आप उससे रिसीविंग कराएंगे। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास रहने चाहिए। तो ये 4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। प्रॉपर अकाउंटिंग लेजर्स मेंटेन करने हैं। जब भी यूसी हाफ ईयरली क्वार्टरली भेजेंगे तो यू हैव टू क्लोज द अकाउंट्स प्रॉपरली। You have to take the approval of the variations or deviations, if any, and then you have to keep the supporting documents in your files, in your registers. तो हम अब प्रेजेंटेशन के आखिरी उसमें आ गए हैं। तो क्या क्या देखिए, अब यूटिलाइज सर्टिफिकेट हमें क्या बता रहा है, ये हमें समझना है। वेरिफिकेशन ऑफ द रिसिप्ट, जब हमने सर्टिफाई कर दिया कि हमें वेरीफाई कर दिया कि वी हैव रिसीव्ड द ग्रांट्स और फंड्स, ये हमें सर्टिफाई कर दिया वी हैव वेरीफाइड दैट कि वी आर फुलफिलिंग द गाइडलाइंस ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स, कि वो प्रॉपरली मेंटेन हो रही हैं गाइडलाइंस या नहीं हो रही हैं। वेरिफिकेशन ऑफ एनी डेविएशन फ्रॉम द गाइडलाइंस आर अप्रूव्ड बिफोर हैंड, कि कुछ डेविएशंस हैं, कुछ अलग हम कर रहे हैं, तो वी हैव टेकन द परमिशन फ्रॉम द फंडिंग एजेंसी, सैंक्शनड अथॉरिटी से हमने परमिशन ले ली है अगर फंड्स कहीं ऊपर नीचे हो रहे हैं तो। Then verification of utilization of the grants. These are as per the guidelines for the purpose stated and within the stipulated time. जिस पर्पज के लिए फंड्स लिए हैं वो भी हम वेरीफाई कर रहे हैं कि we have received this grant for that particular purpose and that particular objective is now fulfilled and within the time frame we have completed our project. जो भी एक्सपेंडिचर हमने करा है, जो भी प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, that is within the time framework. कभी कभी हो जाता है कि 6 महीने ज़्यादा लग गए या 15 दिन ज़्यादा लग गए या 2 महीने ज़्यादा लग गए, तो उसकी भी परमिशन हमें लेनी चाहिए। कि जैसे आपने देखा था कोविड आ गया था, कोविड के टाइम पर सब कुछ बंद हो गया था काम, तो जो उस समय प्रोजेक्ट्स रहे थे तो उनको टाइमिंग उनकी बढ़ा दी गई थी। जिन जिनको ये प्रोजेक्ट्स मिले थे तो उनका टाइमिंग बढ़ा दी गई थी फॉर 1 ईयर और फॉर 2 ईयर्स, कि भाई कोविड के टाइम पर सब कुछ लॉकडाउन था तो कुछ काम नहीं हो पाया, तो उस समय के जो प्रोजेक्ट्स थे वो आगे के लिए बढ़ा दिए गए थे। तो अगर विद इन द टाइम आपका काम खत्म नहीं हो रहा है तो यू शुड टेक द प्रायर अप्रूवल, यू शुड अप्लाई और यू शुड गिव इंफॉर्मेशन टू द फंडिंग एजेंसी की फॉर द इंक्रीज ऑफ टाइम। देन रिव्यू ऑफ द माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग। देखिए मैंने जो बताया कि आपकी इंटरनल कंट्रोल कमेटी बनी हुई है, आपके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैं, जो भी कमेटी बनी हुई है वो रेगुलर मॉनिटर करती है, मीटिंग्स होती हैं उनकी कि भाई अभी हमारा काम सही चल रहा है, आगे कैसे होना है, या कुछ डेविएशंस हो रहे हैं, कुछ सही काम नहीं चल रहा है तो हमें किस तरह से सही करना है। तो उनकी जो मीटिंग्स होती हैं उनके माइन्यूट्स भी हमें, माइन्यूट्स का मतलब हो गया सिंपल कि जो जो उस मीटिंग में डिसाइड हुआ वो हम लिख कर रख लें कि मीटिंग में क्या क्या डिसाइड हुआ और हमें आगे क्या क्या काम करना है, तो वो भी हम बीच बीच में देखते रहें। और जब अगली मीटिंग हो तो पिछली माइन्यूट्स को देखें कि हमने ये सोचा था कि ये हमें करना है, और अगली मीटिंग में हम चेक करेंगे कि वो चीज़ें हमारी पूरी हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं। तो इम्पोर्टेंस की देखिए, ये हमारी लास्ट स्लाइड है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और ये इंश्योर करता है कि डेट द फंड्स आर यूज्ड प्रॉपरली एंड आर नॉट डाइवर्टेड। ये सर्टिफाई हम कर रहे हैं, हमारा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन सर्टिफाई कर रहा है, चीफ इन्वेस्टिगेटर सर्टिफाई कर रहे हैं, फाइनेंशियल अथॉरिटी सर्टिफाई कर रही है कि जो फंड्स लगे हैं वो प्रॉपरली मेंटेन रहे हैं, प्रॉपरली यूज्ड हुए हैं, कोई उसमें घपलेबाजी हमने नहीं करी है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ये डॉक्यूमेंट हो गया कंफर्मिंग दैट द इंटेंडेड वर्क्स हैव बीन एग्जीक्यूटेड। जो वर्क दिया गया था, जो प्रोजेक्ट था, उसके अकॉर्डिंगली वो सब वर्क हमने एग्जीक्यूट करा है, और जो फंड्स थे वो उसी पर्पस में यूज हुए हैं जिस पर्पस के लिए हमें मिले थे। और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज, ये बहुत जगह हमारे काम आते हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है, जैसे आपके फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, वहाँ पे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जरूरत पड़ती है। कुछ खरीदारी आप कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट जैसे आप कॉलेजेस वगैरह में होते हैं, कुछ फंड्स आते हैं और आपने कुछ सामान खरीदा,
तो उसका भी आपको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होगा। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में है तो वो जानते होंगे सब फैकल्टी मेंबर्स कि कुछ खरीदने के लिए कुछ हमारे पास पैसा आता है, कुछ मेंटेनेंस का खर्च पैसा आता है, तो जब हम यूज़ कर लेते हैं पैसे को तो हमें एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हायर अथॉरिटीज़ को देना होता है कि हमने ये पैसा खर्च कर लिया है, किस पर्पस के लिए हमने ये खर्च करा है वो आपको मेंशन करना पड़ता है। तो वन टाइम ग्रांट आपको मिली है या नेक्स्ट रिलीज मिलनी है, तो नेक्स्ट रिलीज चाहिए, आपको पैसा चाहिए, इंस्टॉलमेंट चाहिए, तो पिछला आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। कुछ मैन पावर आजकल देखा होगा आपने, बहुत जगह आउटसोर्सिंग से एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं, तो उनका पैसा आता है और फिर हमें उसका भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होता है कि हमने इतने लोग आउटसोर्सिंग से रखे हैं, और उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हम देते हैं। तो इसलिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो भी 1 रुपया आता है उसका हमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना ही पड़ता है। और आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में सब फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो बहुत सारे जो आप उसमें इन्वॉल्व अगर होते होंगे तो आप सब ये जानते होंगे। तो लास्ट स्लाइड में आप देखेंगे क्या हमें वेरीफाई कर रहे हैं हम। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, की फंक्शनरीज हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने सही से असाइन करी हैं। बेनिफिट्स जो थे वो बेनिफिशियरीज को मिल गए हैं। एक्सपेंडिचर वन इन प्रपोर्शन ऑथराइज्ड बाय द स्कीम गाइडलाइंस, जो एक्सपेंडिचर था उस प्रपोर्शन में ही हमने खर्च करा है, कहीं ज़्यादा या कहीं कम हमने नहीं करा है। फिजिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अकॉर्डिंगली रही है कि जो फिजिकली वर्क करना था, जो फाइनेंशियल हमें खर्च करने थे, वो हमने उस हिसाब से खर्च करे हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, आप देखेंगे कि अगर आपका काम सही चल रहा है और आप सही से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और अदर फॉर्म्स आप सबमिट कर रहे हैं, तो एक क्रेडिबिलिटी बनती है। तो इफ़ योर डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी गुड, तो इससे क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है इन द आइज ऑफ फंडिंग एजेंसीज। और अगर आप फिर कभी दोबारा अप्लाई करते हैं तो आपको आसानी से प्रोजेक्ट मिल सकता है, या पैसा कहीं से भी आपको मिल सकता है कि हाँ भाई इस ऑर्गेनाइजेशन को हमने दिया था या इस पर्टिकुलर पर्सन को दिया था, इसने पिछला काम बहुत अच्छा करा, सब चीज़ें विद इन दी प्रॉपर डेडलाइंस में, बिफोर डेडलाइंस पूरी करी, तो एक क्रेडिबिलिटी हमारी ही बढ़ती है। रेगुलेटरी कंप्लाइंसेज हो जाती हैं, वी कैन अडर टू ऑल द नेसेसरी रेगुलेशंस, मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ पेनल्टीज। भाई जैसे हमारा पैसा बच गया तो वी हैव टू रिटर्न इट टू द गवर्नमेंट, हम नहीं रिटर्न कर रहे हैं तो हम पे पेनल्टी लगा सकते हैं कि भाई आपने पैसा रोके रखा। तो कुछ पेनल्टीज हम पे ना पड़े, कुछ परेशानियां हमें ना आए, तो हमें ये फॉर्मेट्स वगैरह टाइम पर सबमिट कर देने चाहिए। और सब कुछ अगर सही रहता है तो क्या होता है, वी कैन मेक गुड फाइनेंशियल डिसीजंस। तो एक्यूरेट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू फंड यूसेज, कैसे हमने यूज़ करा है, आगे कैसे यूज़ करेंगे, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में रहेगी तो कैसे यूज़ करेंगे, तो हम बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी स्लाइड सब खत्म कर रहा हूँ अपना लेक्चर। आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। Sir, thank you very much. Now section is question and answer. If you have any questions, raise the question. नमस्ते सर। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे ये संस्थागत और व्यक्तिगत 2 तरह से मिलती है ग्रांट। तो व्यक्तिगत ग्रांट मिली हो अगर किसी व्यक्ति को, वो पहले किसी दूसरी संस्था में काम कर रहा था, उसके बाद वो प्रमोशन मतलब दूसरी जगह चला जाए, तो उसको अगर मतलब वहाँ ट्रांसफर करवाना हो तो उसकी क्या प्रक्रिया रहती है? प्रक्रिया ये होगी कि पहले तो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस एनओसी देंगे, जो आपके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होंगे वो एनओसी देंगे कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट आप दूसरी, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ट्रांसफ़र हो जाते हैं या हम जी। दूसरी जॉब में स्विच कर जाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस का लेवल लगभग सेम होना चाहिए पहले तो। जी, अगर जी। वो एक ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट है तो दूसरी भी गवर्नमेंट में ही आप गए हैं, तो आप जी। दोनों प्रिंसिपल से एनओसी लेंगे और देन यू हैव टू, और उनकी कॉपी आप फंडिंग एजेंसी को भेजेंगे आप कि भाई हम यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, और फिर वो जब दोनों एनओसीज आपको होंगी, आपके पास होंगी, तो फंडिंग एजेंसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। लेकिन जो एरिया, जो अगर आप कहीं बाहर का एरिया आपने चूज़ करा है, फिजिकल एरिया है, वो नहीं बदल सकता है, वो लगभग सेम ही होना चाहिए कि कोई अगर पर्टिकुलर सर एरिया, साहित्य के विषय में ही है हाँ मतलब साहित्य है इस तो तरह का प्रोजेक्ट उसका तो कोई एरिया नहीं होता है, तो आप दूसरी जगह पे जाके भी काम कर सकते हैं, लेकिन दोनों प्रिंसिपल्स की रजामंदी इसमें होनी चाहिए, एनओसी दोनों की होनी चाहिए। तो क्या सर जैसे इंस्टीट्यूशनल चार्जेज होते हैं ना 7.5%, तो नहीं वो
डिपेंड करता है कि आपने कितना टाइम एक इंस्टीट्यूशन में यूज़ करा है और फिर दूसरे में कितना जा रहा है। तो मतलब पहला वाला इंस्टीट्यूट ट्रांसफर करेगा पैसा, इंस्टीट्यूशनल चार्जेस भी दूसरे इंस्टीट्यूट हाँ को। जी, हाँ जी। अब हो सकता है कि अगर आपने एक आधा टाइम अगर एक यूज़ करा है तो आधे पैसे, हो सकता है कि वो आधे पैसे अपने ग्रुप में रोक सकता है, आधा पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें आपको फंडिंग एजेंसी को भी बतानी होंगी कि भाई मतलब ICSSR ही डिसाइड करेगा कि कैसे जो करना। चीज़ होंगी, प्रायर परमिशन, हर चीज़ के लिए यू हैव टू टेक द प्रायर परमिशन, ये ध्यान रखें। ओके सर, थैंक यू सर। Any more questions? May I conclude? Okay, sir. Thank you very much for the section. Now I am requesting Dr. Suman Lata Madam for vote of thanks for the resource person. Thank you so much, sir. Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. On behalf of Hari Singh Gaur University and all the participants, I would like to express our sincere thanks to Dr. G. Singh sir for delivering an in-depth and enlightening lecture on how to prepare utilization and income and expenditure certificate during the third session of the 10th day of our faculty induction program. Sir, your expert guidance has provided us with valuable knowledge that will certainly aid us in understanding the details of financial management and documentation. You have effectively highlighted the importance of a utilization certificate as a crucial tool for ensuring transparency, accountability, and proper use of allocated funds. Additionally, your comprehensive explanation of the requirements for preparing a utilization certificate, including accurate record keeping, adherence to guidelines, and timely submission, has been incredibly insightful and practical. Thank you, sir, for your presence, your knowledge, and your commitment to advancing our understanding. Thank you once again, sir, for being with us today and for enriching our learning experience. Thank you, sir. Thank you, madam, and thank you, sir. थैंक यू, नमस्कार सभी को। Thank you. नमस्कार। Namaskar, sir. नमस्ते सर। प्रणाम सर।